Okay, so we discussed these things in our previous lectures. You already know these programs. Now we are going to start JavaScript objects. So I can start here as well. So what I am going to do, I am going to create an array first. So if you take type of array, it's also an object, right? If you create date, and if you want to check type of date, maybe. Okay, just say, okay. Let me find out this one. Declare date object in JavaScript. We might need this thing. Okay, so we can write like this: d equal to new date, and here is the date, right? You can check type of d, and it is also an object. Similarly, you can create an array a equal to new array. It's an empty array, but its type is also object. So most of the things in JavaScript are object. You check document, it is also an object. So this whole thing is an object. Basically, JavaScript is also an object-oriented programming language, right? Like C++ or Java or Python. So you can use all of these things. If you want to create a string, maybe name, you can write something like this. And it also provides indexes to each element like this. If you have an array has similar thing. Both of them have from an attribute length. Same with array. But in array you can insert new elements, maybe array 3, or let's try to change this element array 1 equal to 12. Now see array, it's 1, 12 and 3, right? But if you want to change name JavaScript to something else, maybe Python script, so, or maybe change J to some other character, so we want to write like this, make it K, JavaScript. Now see, name is not changed. Array was changed, but name is not changed. So basically, array is mutable, but string is immutable. You can't edit a string. If you want to edit it, you can assign it to some other variable. Clear? So one thing that is important in array, if you see this array, these are elements, and whenever we are accessing these elements, we are using these indexes: 0, maybe 1, or if you want to access last element of this array, you can use array dot length -1.
right? So whenever you want to access an array, starting from the first element to the last element, or maybe in the reverse, you can use this attribute array.length. Clear? Similarly, we have an object. Object is something different. It's like associative array in PHP. So if you want to create an object, I will write OB. But if you want to declare this, you have to use curly braces. It's like dictionary in Python, right? But in this case, indexes are not 0, 1, 2, 3. These are named indexes. Like if you have enrollment number this and your name, maybe Java. If you have, it's not necessary that it is a string. It could be 1, 2, 3 and maybe 4, 5, 6, and its value is Python. You can access values using keys, right? You have to just pass a key here and you will get the value. Clear? Are you getting me? It's similar to Python. Okay. But if I pass some other value, maybe 2, 3, 4, so output is undefined. It means you have to provide keys, only those keys which are in the object. If you try to pass something else, you will get undefined. Is it clear to everyone? Okay. Now I want to use these things to create a record of students. So students is an object and it should be inside curly braces, right? Now I want to give enrollment number, and with the enrollment number I want to create a whole array of the elements, right? And inside array I want to provide marks of maybe 5 subjects for each student. Yeah. So what I can do, maybe I can make 5 dictionaries. Either I can do something like this, maybe marks are 98, 78, 89, 87 and 97. These are marks of one student. And these are marks of second student. Change its enrollment number to 456. Change its marks a bit. Right? Now this is an object where we have 2 elements. Let's try to extract. So when we are passing enrollment number 1, 2, 3, we are getting 5 marks of a subject. Second, you can pass 4, 5, 6 and you will get marks of another subject. Is it clear? Okay. Next, if you wanted to provide subject name also, if you want to define subject name also, then what you have to do, you can make object of each marks like this. Similarly with this. Everyone getting me? Now here you have to make key value pairs again. Maybe your subject is web, then your subject is DA, another subject maybe CN, maybe उसके बाद
आपका आ गया CO। और कोई मैथ वाला सब्जेक्ट है आपके पास? मैं यहाँ से कॉपी करता रहता हूँ और दूसरे स्टूडेंट की मार्क्स भी कुछ ऐसे ही आएंगे। अभी देखिए हम क्या करेंगे इसके साथ। तो अभी तो मैं सिर्फ डेटा बना रहा हूँ, राइट। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू रिट्रीव दिस डेटा। Each should be same. Now this is an object. I have taken 2 students only, but there could be more than, maybe there could be 1,000 or maybe millions of students, right? Or there could be millions of records. It's a student, but there could be anything, right? Like you are getting data from the Twitter and there are millions of records, and it is just a small thing, but there could be multiple details of these, whatever you fill in your profile, right? So if you want to access marks of second student and subject is, what is enrollment number? 456. So it's 456. So basically it will give you marks of all the subject together. But if I want marks of any one subject, so what I will do, I will pass that subject here. If I want marks of maths, okay, no. What I have to do now, student 456, I am getting an entry for that, and that entry is of what type? What should be the type of this output that I am getting from student, and I am passing 456 inside it? Sir, array. What should be the type? String, array, integer, object, what should be the type? ऑब्जेक्ट तो वैसे आपको किसी में मिल जाएगा, लेकिन हमको थोड़ा स्पेसिफिक होना है, राइट? बिकॉज एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग स्ट्रिंग होगा, क्या मिलेगा वो आउटपुट में? स्टूडेंट्स एंड 456 कर रहा हूं जब मैं, तो क्या मिलेगा आपको? नहीं, सब्जेक्ट तो करना है, अभी मैंने इतना किया, लेकिन अभी देखो ये जेसॉन का थोड़ा आपको इंट्रो मिल रहा है एक तरीके से। ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो भी पढ़ रहे हैं हम, एंड जेसॉन इज आल्सो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, तो सिमिलर होगा इसके। बट मैं अभी आपको क्या कह रहा हूँ कि मुझे इससे मार्क्स निकालने, पर वो बात की बात है। अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स में हमने 456 पास किया, देन वी आर गोइंग टू गेट एन एंट्री, क्योंकि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, वी आर पासिंग अ की 456, सो विल गेट अ वैल्यू। अब आप देखो ये पूरे जो ऑब्जेक्ट बना हुआ, जो मैंने बनाया ऑब्जेक्ट, उसमें देखो जब मैं 456 पास करता हूँ तो उसका जो ये तो की है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आने वाली है वो क्या है? एसोसिएटिव एरे आएगा या कुछ और आएगा? एक बार फिर से चेक कर लो। और कोई बच्चा बताएगा? मार्क्स की लिस्ट आएगी ना पूरी, बट उस पूरे का टाइप क्या है एक्चुअली, क्या चीज है वो जो आने वाली है? हाँ, डिक्शनरी तो नहीं आएगी ना, पाइथन थोड़ा ना पढ़ रहा है, टपल होता ही नहीं यहाँ पे। हाँ, एरे आएगा पक्का? अरे श्योर? ठीक है, एरे आएगा, सही कह रही है, एरे आएगा यहाँ पे। जब 456 पास कर रहे हैं, 456 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखिए ना किस टाइप की है, एरे नहीं बना हुआ पूरा एक। ये 456 ऊपर हमने निकाला ना, ये क्या बना था? ये पूरा क्या था? एरे तो था। अब एरे में आपको पता होना चाहिए कि किस कहाँ पे है वो, ठीक है? तो आपको कौन से मार्क्स चाहिए? 0th वाला चाहिए, फर्स्ट चाहिए, सेकंड चाहिए, उसके हिसाब से आपको, क्योंकि उस एरे की एंट्रीज क्या है, जिस एरे की आप बात कर रही हैं उसकी एंट्रीज क्या है, एक एक डिक्शनरी है उसकी एंट्री छोटी छोटी,
या एक एक ऑब्जेक्ट है छोटा छोटा। तो जैसे मैं मार्क्स फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ मैथ्स के, तो मैथ्स कौन से नंबर पे है? 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स। तो पहले थर्ड इंडेक्स पे जाऊंगा। अब ये मुझे पूरी पूरी एक डिक्शनरी, एक ऑब्जेक्ट दे देगा। इसके बाद मुझे इसके पास करना पड़ेगा CO, सॉरी CO, ऐसा, तब मुझे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना दिया। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट या इतने ऑब्जेक्ट से सब कुछ हो जाना है। अभी बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होंगी जिनको आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हम छोटी छोटी फाइल से पहले स्टार्ट करेंगे, फिर काम करेंगे इस पे। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल लेके आया हूँ। जेसॉन प्लेस होल्डर नाम की एक वेबसाइट है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स होंगे, उन एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जेसॉन प्लेस होल्डर एक्चुअली क्या है, एक वेबसाइट है, इसमें फेक एपीआईज है। ठीक है, जैसे गेट यहाँ पे लिखा हुआ है, और भी यहाँ कहीं होंगी नीचे, ये हैं एपीआईज। ठीक है, एपीआई एक्चुअली आपको ऐसा रिस्पॉन्स देती है, इसलिए फेक एपीआई इसलिए बोला गया है इसको। JSON placeholder is a free online REST API that you can use whenever you need some fake data. It can be in a README on GitHub, for a demo on the code sandbox, in the code example on Stack Overflow, or simply to test things locally. अगर आपको चीजें कुछ लोकली चेक करनी है, एपीआई पे कुछ काम करना सीखना चाहते हैं, तो एपीआई कुछ ऐसी ही बनती है। जैसे अगर मैं इसको उठाऊं, पोस्ट को, इस पे क्लिक करूं, तो आप देखो इस टाइप की कुछ आपके पास एक लिस्ट बनी हुई है। ये तो ये एक एरे है अभी, और ये सारा कौन सा कोड है? जेसॉन टाइप का कोड है ये। ठीक है, यूजर आईडी, ये देखो सबसे पहले एक एरे बना हुआ है। एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, और हर एक एलिमेंट अपने आप में क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। राइट, ये ऑब्जेक्ट देखिए, है ना एक ऑब्जेक्ट ऐसा। आप भी ये वेबसाइट ओपन करके देख सकते हैं, ऐसे ही है। और हर ऑब्जेक्ट के अंदर आप देखो यूजर आईडी टाइटल बॉडी, इस टाइप की चीजें हैं। तो जैसे मैं इस फाइल को सेव कर लूं, अगर जो भी ये फाइल है, कॉपी नहीं करेंगे, आप इसको सेव करेंगे एक्चुअली। ठीक है, और सेव करने से डॉट जेसन की फॉर्मेट में सेव कर लीजिए, और फिर उसको रीड करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट्स नाम से एक फाइल बना देते हैं। ठीक है, इस फाइल का नाम objects.html रख लेते हैं। कुछ छोटी मोटी चीजें जो कि हमेशा ही होती हैं इसकी, यहाँ पे लिख लेते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। फिर आपको स्क्रिप्ट टैग जहां मर्जी आपकी बनाओ, आप बॉडी के अंदर भी बना सकते हैं, और यहाँ पे टाइटल के नीचे भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो आप जहां मर्जी वहां लिखिए। मैं फिलहाल यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्रिप्ट, आप साथ में टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो इसे पता चल जाएगा आप क्या लिखना चाहते हैं। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, बट लिख के रखिए।
और आपको ऑब्जेक्ट जैसे हमने क्रिएट करने की बात की थी, तो वही वाला ऑब्जेक्ट जो अभी बनाया था यहाँ पे, उसको कॉपी कर लेते हैं और फिर उसी पहले उसको प्रोसेस करते हैं, फिर इन पे आएंगे जो ये बड़ी चीजें हैं। थोड़ा हैंग हो रहा है गूगल क्रोम। क्विट करना नहीं चाहता हूँ मैं इसको। कोई नहीं, खुद से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तब तक, फिर से छोटा सा ऑब्जेक्ट। जेएस ऑब्जेक्ट बनाने के तरीके हैं, देखिए। पहले आप ब्लैंक भी बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। या और तरीके क्या है, जेएस ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, ऐसे भी दे सकते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रही है सर? आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। या लैग हो रही है? लैग हो रही है, दिख नहीं रही है? अच्छा, सर लैग। पहले वाली डॉक्यूमेंट ओपन है। सर दिख नहीं रहा सर। लगता है क्विट करना ही पड़ेगा मुझे, क्रोम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और मेरे टैब बहुत सारे खुले होते हैं। अब शायद से उसको कोई फायदा नहीं होगा, वो चला गया होगा बेचारा कोड। वो कोड तो चला गया अब, जो लिखा था मैंने इतनी मेहनत से, ठीक है। कोई नहीं, दोबारा से जेसन प्लेस होल्डर ओपन करते हैं। यहाँ पे आपकी फेक एपीआई जो भी थी, चाहे तो आप इस पूरे को सेव करने में क्यों दिक्कत कर रहा है ये? सर आपके अभी भी पहले वाला पेज ओपन हो रहा है। यस सर। कोई दूसरा ट्राई कर लेते हैं। जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। देखते हैं कहीं इस बार भी। लगता है फिर से हैंग हो गया, ये सेव नहीं कर पा रहा है।
चलो अब आ गया आखिरकार। तो हमें इसको सेव करना है अपने सिस्टम में। ऑप्ट ठीक है, एक फाइल क्रिएट की है मैंने, और ये फाइल क्या काम कर रही है ओपन करके देख लेते हैं एक बार। तो इस चीज को आपको ध्यान से देखना है और समझना है कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, ये एक जेसॉन डेटा है आपके पास से। जेसॉन का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जैसा भी जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़ा उसी टाइप की कोई चीज है ये, ठीक है। तो अगर आप ये देखें कि फर्स्ट पार्ट एरे वाला पार्ट है, देखो, ठीक है, दिख रहा है फर्स्ट लाइन में। हाँ सर स्क्रीन अभी नहीं भी दिख लैग रहा है। है? सर अभी भी लैग है स्क्रीन। सर आप देख ही नहीं रहे सर। सर अभी भी इतना ज्यादा लैग हो रहा है क्या? सर अभी तब से वहीं पे है। अरे यार, रुकी हुई। ऐसे कैसे हो रहा है? सर स्क्रीन लैग हो रही है सर बहुत ज्यादा। एडिटर नहीं दिखा अब तक? सर नहीं नो, सर, पहले वाला ही दिख रहा है। सर वो पहले वाली स्क्रीन शो कर रही है बस। अभी दिखा कि नहीं दिखा? अभी भी नहीं दिखा? नो सर। मैं ऐसा करता हूँ एक काम, स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूँ। स्टॉप हुई शेयरिंग अभी? अभी कोई स्क्रीन दिख यस रही सर, है? यस सर। स्टॉप हो गया ना, ठीक है। अभी दिख रही है स्क्रीन? अब क्या दिख रहा है? एडिटर दिख रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन देखेंगे आपको, ये दिख रहा है एरे, ठीक है। अगर आप सेकंड लाइन देखेंगे, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है। ये कहाँ तक ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट जो क्लोज कर दिया मैंने। तो एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, तीसरा ऑब्जेक्ट ये है, राइट। तो कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं इसमें, पहले देख लो। ये 1200 के आसपास लाइन्स हैं इसमें, और 4-5 लाइन एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो हो सकता है 100 के आसपास ऑब्जेक्ट होंगे इसमें, ठीक है। तो जेसॉन को तो हम ऐसे रीड नहीं कर रहे हैं, बट एक काम करेंगे, जो हमारी objects.html वाली फाइल है, इसके साथ साथ एक नई फाइल बना देते हैं, और उस फाइल का नाम रखते हैं जेएस फाइल। कोई भी जेएस में भी टू डूज डॉट जेसॉन की जगह इसको जेएस कर देते हैं, ठीक है। और जेएस करने के साथ ही हम ये सारा जेसॉन वाला जो कोड है इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये भी जावास्क्रिप्ट है एक्चुअली, हम भी मान के चल रहे हैं जावास्क्रिप्ट है, ये एक वेरिएबल है ये, राइट। और इसको चाहे तो आप किसी वेरिएबल में जैसे डेटा ऐसा सेव कर लीजिए, डेटा इक्वल टू, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। ये जावास्क्रिप्ट आप जहाँ पे हेड लिखा हुआ है आपने, आप यहाँ पे स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट
ये लिख सकते हैं और साथ में सोर्स इंक्लूड कर सकते हैं। सोर्स में क्या है, todos.js। तो एक बार इस पेज को ब्राउजर में चेक कर लेते हैं, तभी पता चलेगा हमें। इस पेज से हमें पता चलेगा कि क्या ऑब्जेक्ट इंपोर्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो objects.html में जाएंगे, अभी तो खाली दिख रहा है, बट यहाँ नीचे चेक करते हैं कंसोल के अंदर। कंसोल के अंदर वेरिएबल आ जाना चाहिए अगर बना होगा तो, ठीक है। तो हमने कुछ कुछ ऑब्जेक्ट बनाए थे पहले, तो उनको देख लेते हैं। खाली वाले ऑब्जेक्ट, जेएस ऑब्जेक्ट नाम से एक खाली ऑब्जेक्ट बनाया था, देखते हैं वो आया कि नहीं आया। जेएस ऑब्जेक्ट ये तो है, इसको रीड कर पा रहा है। इसमें कुछ अगर हम वैल्यूज फिल करेंगे जैसे हमने पहले की थी 1 2 3, और इसकी जगह कोई नाम डाल देते हैं, जैसे जेएस ही डाल देते हैं सिर्फ। फिर रिफ्रेश करते हैं, अगर चेक करेंगे जेएस ऑब्जेक्ट, अभी भी खाली खाली आ रहा है, तो इसका मतलब कोई गड़बड़ की हमने। 1 2 3, सेव नहीं किया गया। फिर से रिफ्रेश करता हूँ एक बार, अभी भी ब्लैंक आ रहा है। अच्छा ठीक है, ब्लैंक क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने दूसरी लाइन में फिर से उसको इनिशियलाइज कर दिया है, वो हटा देता हूँ। ठीक है, अब पहली लाइन रहेगी। अब आ गया देखिए, तो एक ऑब्जेक्ट था, अब दूसरा ऑब्जेक्ट इसी टाइप का। देखो अभी ये तो छोटा सा ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को ऐसे एरे में बंद कर दूं। तो एक एलिमेंट तो ये वाला हो गया। ऐसे अगर दूसरा एलिमेंट बनाना हो तो 3 4 5, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू मे बी पाइथन अगर देंगे आप, फिर से रिफ्रेश करके चेक कर लीजिए। जेएस ऑब्जेक्ट देखिए, दो वैल्यू है इसके अंदर। जेएस ऑब्जेक्ट अगर 0 चेक करेंगे, ये वाली वैल्यू है, क्योंकि एरे है इसलिए 0 1 से इसको एक्सेस कर रहे हैं। बट अगर आपको इस एरे के 0th एलिमेंट का एनरोलमेंट नंबर से पूरा रिकॉर्ड चाहिए तो ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर सेकंड वाले का कोई रिकॉर्ड चाहिए, क्या था वो 2 3 4 या 3 4 5 3 4 5 क्या था, सॉरी 1 होगा पहले, तो 2 3 4 नहीं 3 4 5, तो ये आ गया। तो जैसा ऑब्जेक्ट मैंने छोटा वाला ऑब्जेक्ट बनाया, देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट, ये पूरा बड़ा ऑब्जेक्ट भी तो यही है, नहीं है? वही तो है जो डेटा में लिख रहा हूँ, डेटा इक्वल टू, और उसके बाद ये सारा का सारा। अब आप ये बोल सकते हैं कि इसको दूसरी फाइल में क्यों बनाया। वो इसलिए बनाया क्योंकि वो बहुत बड़ा डेटा है, तो मैं उसको इस फाइल में नहीं रखना चाह रहा हूँ, इसलिए दूसरी फाइल में डाल दिया। राइट, तो अब आप मतलब ये भी चेक कर सकते हैं क्या डेटा आया यहाँ की नहीं आया। तो आप देख पा रहे हैं डेटा आ चुका है। डेटा की अगर लेंथ चेक करना चाहें तो 200 है, इसका मतलब 200 ऑब्जेक्ट है उसके अंदर। राइट, अब एक एक ऑब्जेक्ट करके चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको उसका स्ट्रक्चर देखना है तो 0th ये स्ट्रक्चर है, यूजर आईडी टाइटल और कंप्लीटेड इक्वल टू फॉल्स। और जैसे उसके नाम से पता चल रहा है todos.js है या जेसॉन था, तो वो एपीआई एक्चुअली कर क्या रही है। अगर आप इसके डेटा को ध्यान से देखें यहाँ पे जाके, तो आपको पता चलेगा कि जो भी ये डेटा है, पहला यूजर आईडी बता रहा है, फिर किसी चीज की आईडी बता रहा है, फिर उसका टाइटल बता रहा है, फिर कंप्लीटेड इक्वल टू फॉल्स या ट्रू, जैसा कि नीचे दिख भी रहा है। तो जेसॉन डेटा कई बार डिफिकल्ट हो जाता है आपको समझना कि क्या है। ये तो चलो आसान सा डेटा दिख रहा है आपको, पर कई बार डिफिकल्ट डेटा भी हो सकता है।
राइट। डिफिकल्ट डेटा कैसा हो सकता है? अगर मैं आपको कोई फाइल अगर मेरे पास होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली फाइल है छोटी सी, ये डेटा है कुछ, ठीक है, जेसॉन डेटा है सारा का सारा। इसमें लगभग ये तो मैंने आपको छोटी फाइल ओपन करके दिखाई है, बट जीबीज वाली फाइल भी है जिनको प्रोसेस करना है। तो इसी में ये जो छोटी फाइल है, ये सोचिए 15-16 MB की फाइल है, इसके अंदर ही 2600 रिकॉर्ड है अप्रॉक्स। और एक लाइन एक लंबी सी आपको दिख रही होगी जो, तो आपको ये लाइन तो पूरी दिख नहीं पा रही है अभी, मैं आपको पूरी दिखाने की कोशिश करता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि एक लाइन में कितना कोड हो सकता है। यहाँ देखो, अब दिख रहा है, ये एक लाइन है, यहाँ से शुरू हो गई, देखते रहो, अभी खत्म नहीं हुई है। अब खत्म हुई है इतना सारा कोड, ये एक लाइन का कोड है। अगर मैं इसको एक नई फाइल में डालूं ताकि आपको पता चले क्या है, तो ये है, अरे फिर से हो गया, तो इसको उठा के किसी दूसरे में चेक कर लेते हैं। मे बी एक लाइन है, ये ट्विटर का डेटा है ये, और छोटा करूं अगर इसको, ये एक लाइन है, ठीक है। तो अगर मुझे इससे स्ट्रक्चर, अभी तो मैंने आपको छोटा सा बता दिया, एनरोलमेंट नंबर और उसके मार्क्स, तो वो तो आसान है समझना। अगर इस बड़े को समझना हो तो देख के समझा जा सकता है आसानी से। इसको देख के समझा जा सकता है आसानी से, बहुत डिफिकल्ट है, राइट, क्योंकि स्ट्रक्चर इतना बड़ा है। ये तो छोटी सी चीज है, चलो हो सकता है इससे बड़ा डेटा मिल जाए। फिर उसमें स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना। स्ट्रक्चर में देखो एक और प्रॉब्लम होती है कि एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इस तरीके से चीजें होती है। जैसे एरे के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी हो सकता है, फिर उस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, एंड सिमिलरली जितना डीप जा सकते हैं वो जा सकता है। तो इसीलिए वो डिफिकल्ट है थोड़ा। अब कैसे कैसे इसको समझ सकते हैं, तो इस फाइल को पहले क्लोज करते हैं और इसको, कहाँ है वो जेसॉन वाला डेटा, ये वाला, ये छोटा डेटा है, राइट। इसको समझने के लिए पहले मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। आपको भी यही करना है जब भी किसी जेसॉन डेटा को समझना हो, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम जाते हैं जेसॉन व्यूअर पे, जेसॉन व्यूअर डॉट स्टैक डॉट एच यू, इस पर क्लिक किया तो आपको टेक्स्ट कॉपी करने के लिए एक जगह दिख रही है सबको। पेस्ट किया, सोचा आप फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेटेड है ऑलरेडी। तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी वैसा ही है जैसे था। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो किस फॉर्मेट में आपको डेटा दिख रहा है। तो जैसे मैंने 0 पे क्लिक किया, अब मुझे स्ट्रक्चर दिखने लग गया। समझ रहे हैं सब लोग? ऐसे ही मुझे अगर सेकंड का स्ट्रक्चर देखना है, तो उसमें भी दिख रहा है यूजर आईडी टाइटल और कंप्लीटेड इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। अब मैं कोई रैंडमली और खोल के देखता हूँ, तो सबके सिमिलर हैं। तो पहले तो मुझे आप लोगों से जानना है, फिर मैं दूसरी फाइल भी दिखाऊंगा आपको इस तरीके से। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये डेटा क्या बता रहा है एक्चुअली? ये यूजर आईडी क्या बता रही है, ये आईडी क्या बता रही है, और उसके बाद टाइटल और कंप्लीटेड फॉल्स, इनसे आप ओवरऑल क्या निकाल पा रहे हैं, किस चीज का डेटा है ये? कोई बच्चा बताएगा? ये तो आपने बता दिया कि डेटा क्या दिख रहा है, बट इससे क्या समझिए आप, ये क्या है, किस चीज का डेटा होगा ये?
कुछ समझने की कोशिश करो ना, डेटा किस चीज का हो सकता है। अगर ओवरऑल एक लाइन में पूछूं आपसे, जैसे जैसे अगर मैंने अभी आपको एक फॉर्म भेजा था गूगल फॉर्म सबको, राइट, मैंने कहा इसमें आप ना अपना असाइनमेंट का जो भी अपने डिटेल है वो फिल कर दीजिए। अगर मैं आपको एक बार वो डेटा दिखाऊंगा तो आप दोबारा मुझे बता देंगे किस चीज़ का डेटा है। मैं आपको एक्सेल सीट दिखाऊंगा, इसमें वो सारा जो भी फॉर्म फिल किया आप लोगों ने वो दिखाऊंगा मैं आपको, आप क्या बोलेंगे किस चीज़ का डेटा है वो, किस चीज़ के लिए, फॉर व्हाट पर्पस। असाइनमेंट सबमिट किया तो उसकी डिटेल है ये बोलेंगी ना आप। ये तो नहीं कहेंगी कि सर ये वो डेटा है, इसमें नेम लिखा हुआ है और गिटहब का एक लिंक डाला हुआ है और इसमें कुछ फीडबैक है, ऐसा कुछ है। वो तो टाइटल से पता चल रहा है, लेकिन आप उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ये निकल के आई उस डेटा से कि ये असाइनमेंट सबमिट करना था, उसका रिकॉर्ड है। सिंपल सा है ना, ऐसे ही तो है। क्लियर हो रहा है सब। ऐसे ही मैं इससे पूछ रहा हूँ, ये वाला डेटा है। सेंस बन रहा है ना, अभी देखो, हाँ वो कंप्लीटेड इक्वल टू जो है उससे सेंस बनेगा। हाँ, todos.js उसकी फाइल के नाम से भी पता चल रहा था जब मैंने आपको फाइल दिखाई थी। कुल मिला के एक कोई एक जॉब लिस्ट है, ठीक है। सबसे पहले यूजर दिया हुआ है ऊपर। यूजर का मतलब ये है कि उस यूजर ने उस पर्टिकुलर आईडी का टास्क उठाया जिसका टाइटल ये है, और वो उसको कंप्लीट कर पाया कि नहीं कर पाया, ठीक है। जैसे मैं आप सबको ये समझ लीजिए, ये एग्जैक्टली वही चीज है, जैसे मैं आपको 10 असाइनमेंट देता हूँ और आपके रोल नंबर्स हैं, यूजर आईडी इज योर रोल नंबर। मैं देखता हूँ इस बच्चे ने ये वाला असाइनमेंट कंप्लीट किया या नहीं किया, ऐसा कुछ डेटा है, ऐसे ही तो डेटा है। अब मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कौन से वो बच्चे हैं जिन्होंने मैक्सिमम असाइनमेंट कंप्लीट किए हैं और कौन से वो बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल कम या मिनिमम असाइनमेंट कंप्लीट किए। ये आपको इस डेटा से निकालना है। अभी 200 का दिया हुआ है, ठीक है, बट कैसे करेंगे ये काम, ये करना पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा, जब पूछा है तो करना ही पड़ेगा। अब देखो दूसरा, देखो इतना आसान लग रहा है ना ये तो, क्योंकि इसमें आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले तो 4 लाइन है ना इसमें, एक ऑब्जेक्ट में तो 4 लाइन है, 4 ही तो रीड करनी है मैक्सिमम। अब दूसरा दूसरा डेटा देखो पहले, अभी इसको वर्ड रैप, टॉगल वर्ड रैप कर दिया, इसका मतलब है कि एक लाइन में एक ही दिखेगा। तो एक लाइन में एक दिखाने का मतलब ये है कि आफत ना आए ज्यादा, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ एक लाइन को यहाँ से, और इस टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। दिस इज 1 लाइन। मैंने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट उठाया, ज्यादा नहीं उठाया, ठीक है, ये एक है। अब इसको समझेंगे अभी हम थोड़ा सा, आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा ये, हो सकता है मैं प्रैक्टिकल में पूछ लूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ तो पूछ भी सकता हूँ, ठीक है। बोलो। अब देखो ये ट्विटर का डेटा है, एक ट्वीट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है वो है ये सारी की सारी। तो ये तो सबसे पहले क्रिएटेड डाटा है, आईडी, फुल टेक्स्ट, ये एक ट्वीट है एक्चुअली, ठीक है, जो कि इस डेट पे क्रिएट हुआ, जो ऊपर लिखी हुई है Feb 3 को 2020 में, मतलब पिछले साल की बात है ये, तब का ट्वीट है। उसके बाद इसके अंदर कुछ एंटिटीज हैं। अब देखो कैसे चेन बनती रहती है अंदर की तरफ। तो हैशटैग्स हैं इसके अंदर कुछ, हैशटैग्स में भी 0 हैशटैग, उसकी इंडिसेस भी दी हुई, क्या हैशटैग किसी ने यूज किए। ऐसे ही एक हैशटैग और भी किसी ने यूज किया, ये एक्चुअली ट्वीट मैंने ऐसा उठा लिया कि हमारी लैंग्वेज में नहीं है, दूसरा कुछ उठा लेते हैं ताकि आपको खुद भी पता चले और मेरे को भी पता चले क्या हो रहा है, ठीक है। ये बड़ी छोटा है, ये कुछ है, मतलब समझ में आने लायक चीज है ये। बट इस ये ट्वीट में एक चीज है, इसलिए मैं कुछ दूसरा उठाऊंगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट नहीं है वो चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ।
ठीक है, देख लीजिए ये क्रिएट हुआ, वही फैब 3 का डेटा है, ये फिर वही आ गया वापस। ओहो, ठीक है, ये लास्ट ट्राई है, इसमें जैसा भी कोई भी लैंग्वेज आ जाए सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। वही आ रहा है बार बार। या रिफ्रेश करते में भी वो ठीक है, नहीं अलग है। अब देखो वही फैब 3 का डेटा है, फिर एंटिटीज हैं इसके अंदर, आप सब जानते हैं कि हैशटैग या मेंशंस यूज करते हैं लोग डेटा में। तो जब आप रिक्वेस्ट करेंगे ट्विटर से डेटा यूजिंग एपीआई, तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ डेटा एंड यू हैव टू प्रोसेस दैट। सिमिलरली अदर एपीआईज पे अगर आपको काम करना है तो ऐसा ही कुछ डेटा मिलेगा आपको। तो फर्स्ट टेक्स्ट दिख रहा है कोरोना, सेकेंड हैशटैग यूज हुआ है कोरोना वायरस ईसी, पता नहीं क्या है, जो भी है मतलब किया है किसी ने। और भी बहुत हैशटैग्स हैं, देखिए अगर आपको ये सारे हैशटैग निकालने तो इन सबको प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। तो ये एंटिटीज बंद कर देता हूँ फिलहाल यहाँ से। और क्या क्या चीज़ें, यूजर्स की डिटेल है, ये यूजर है, यूजर की सारी डिटेल कि यूजर की आईडी क्या है, उसका नेम क्या है, उसकी लोकेशन क्या, लोकेशन भी आई है, कई बार लोकेशन नहीं आती बट यहाँ पे आई है। डिस्क्रिप्शन क्या है, कोई फुटबॉलर, आई लव टू सी पीपल स्माइल, रियल मैड्रिड फैन, ये सब है। फिर इसके अंदर एंटिटी, इसके फॉलोअर्स कितने हैं, क्या अकाउंट है, ये सब है यहाँ पे देखिए। कब इसकी प्रोफाइल क्रिएट हुई, और ये वेरीफाइड यूजर है या नहीं है, स्टेटस काउंट यानी कि टोटल कितने ट्वीट्स हैं एंड ऑल दैट। ये प्रोफाइल इमेज, इन सबका यूआरएल अगर आप ये भी देखना चाहते हैं ये भी देख सकते हैं। तो इतनी सारी डिटेल ऑलरेडी इसके अंदर है। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें और इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर ट्वीट के अंदर की रिट्वीट नहीं हुआ होगा शायद से, ये ट्वीट अगर रिट्वीट हो जाएगा तो एक और इन्फॉर्मेशन आएगी। तो इसीलिए आपको ये टेक्स्ट थोड़ा छोटा दिख भी रहा होगा, ये कम दिख रहा है। अगर हम पहला वाला पिक करते जो हमने पहले किया भी था, अब लैंग्वेज को हटा देते हैं, तो इसमें रिट्वीटेड स्टेटस भी आया देखो। तो जिसने रिट्वीट किया उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी इसके अंदर पूरी की पूरी, एक तो ट्वीट कब हुआ, रिट्वीट वगैरह वगैरह सारी चीजें। फिर जिस यूजर ने रिट्वीट किया फिर उसकी इंफॉर्मेशन भी होगी। तो अब देखो चेन कितनी बड़ी बन रही है। तो ये आपकी हेल्प कर रहा है ये समझने में कि ये डेटा कैसा है। एक यूजर ये था ऊपर देखिए, तो दोनों यूजर अलग हैं, अबू अहमद वन यूजर और सेकंड यूजर इज साहब समथिंग, साहब न्यूज। तो ये एक्चुअली रियल में तो डेटा को इस टाइप का प्रोसेस करना है, प्रैक्टिस पर्पस के लिए हम छोटा सा कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसको मैं कर देता हूं बंद और यहां पे आ जाते हैं। कंसोल डॉट लॉग डेटा, अगर मैं जीरो प्रिंट कराऊं तो ये जीरो वाला जो था डेटा के अंदर वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया डेटा प्रिंट। अगर आप इसकी और चीजें प्रिंट कराना चाहें, क्या क्या थी उसके अंदर, जीरो के अंदर से यूजर आईडी प्रिंट कराना चाहते हैं अगर, तो क्या लिखेंगे आप, यूजर आईडी। ऐसी आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यूजर आईडी इज नॉट डिफाइंड, ओके, लगता है मैंने कुछ गलत लिख दिया, फिर से चेक कर लेते हैं क्या है। डेटा जीरो में डिक्शनरी आ चुकी है, यहाँ से उठा लेते हैं यूजर आईडी। मुझे तो लगता है मैंने सही पिक किया था बट स्टिल देख लेते हैं। यूजर आईडी आ गई है। ऐसे आप बाकी इंफॉर्मेशन को भी प्रिंट कर सकते हैं,
बाकी इंफॉर्मेशन क्या क्या है? दूसरी थी आईडी, तीसरा था टाइटल और फोर्थ वन था कंप्लीटेड। तो ये हमने एक के लिए प्रिंट किया अभी, यानी कि यूजर की आईडी 1, टास्क 1, उसका कुछ टाइटल है। टाइटल से हमारा ज्यादा फर्क पड़ता नहीं हमें, यहाँ पे टाइटल क्या, उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना। बस हमें ये देखना है कि यूजर ने काम कंप्लीट किया कि नहीं किया। तो टास्क लिख लीजिए अभी यहाँ पे। तो इस डेटा को एक बार देखिए, लिंक आपको पता है ये डेटा कहाँ से आया है ना। जेसॉन प्लेस होल्डर में जाएंगे आप, .typecode.com, ये मैं भेज देता हूँ आपको ये वाला लिंक। इसको सेव कीजिए इस फाइल को, और उसके बाद आप मुझे थोड़ा थोड़ा जो मैं आपसे पूछूंगा वो बताएंगे आप। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। लिंक मैंने आपको चैट में भेज दिया है। बस आप मुझे ये बताइए अब कि कैसे हम इससे मैक्सिमम नंबर जिसने टास्क कंप्लीट किए वो फाइंड आउट कर सकते हैं और मिनिमम किए वो फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले सिर्फ एक पे फोकस कीजिए, मैक्सिमम वाले पे। और डेटा आपके सामने है, ये है डेटा। बताइए, थोड़ा हिंट तो दो। ऐसे कैसे हो गया? हाँ, अच्छा गेस्ट ज्वाइन किया आपने। एक काम, मैं टेलीग्राम पे भेज देता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पे लिंक भेजा, उससे ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नहीं समझे? क्वेश्चन है इस डेटा में से आपको वो आईडीज निकालनी है जिन्होंने सबसे ज्यादा टास्क कंप्लीट कर लिए। जिन्होंने सबसे ज्यादा टास्क कंप्लीट कर लिए उन यूजर्स की आईडी फाइंड आउट करनी है आपको। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। बहुत आसान कोड है, ठीक है।
मतलब इतना आसान है कि 3-4 लाइन में हो जाएगा। उनमें से अगर आपने एक लाइन मुझे बता दी तो आपका आभारी रहूंगा मैं। ठीक है, थोड़ा आइडिया देना है आपको कैसे निकालेंगे हम कि किसने सबसे ज्यादा काम किया। पहले ऐसे ही देख के बता दो डेटा में कितने यूजर्स हैं हमारे पास। दस है, ठीक है। और टास्क कितने हैं? सेम है या अलग अलग टास्क है? इसका मतलब 10 यूजर थे, सबको कुछ कुछ टास्क दे दिए, कुछ किसी को किसी को, है ना? ऐसे ही है, 20-20 टास्क आई थिंक, है ना? ऐसे ही हुआ, ठीक है। अब उसमें से जैसे अभी आप इतने बच्चे यहाँ पे बैठे हुए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी बैठे हुए, सबको मान लीजिए मैं 10-10 क्वेश्चन देता हूँ और उसके बाद आपसे पूछता हूँ कि आपने कितने किए, आपने कितने किए या कितने नहीं किए, या सिर्फ आपसे ट्रू एंड फॉल्स पूछूं कि ये वाला किया, ये वाला क्वेश्चन किया, इस तरीके की बात है कुछ। तो अब उसमें कैसे पता चलेगा सबसे ज्यादा किसने किए? खुद ही सोचो, अपने स्टूडेंट्स के हिसाब से सोचो ना। आपको कुछ टास्क दिए हुए और आपको ये पता करना है सबसे ज्यादा किसने किए, तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसी का डेटा है ये। ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं कोई बताना चाहता है? अमन कुमार। यस सर। एक सेकेंड है अमन, लगता है मुझे ना फिर से साउंड नहीं आ रही है। मैं एक बार फिर से साउंड चेक करता हूँ इसकी, फिर आपको मौका देते हैं दोबारा। म्यूट ने हर बार मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इसमें, क्यों होती है पता नहीं। या तो ये टीम व्यूअर को कनेक्ट करता है उसके कारण प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टीम व्यूअर पे तो मुझे कुछ चाहिए भी नहीं है। अमन कुछ बोलो जरा एक बार। हेलो सर। यस, अब आ रही है आपकी आवाज। सर या फिर एक लूप बना के उसमें आइटरेट करते हुए। सर एक लूप बना लेंगे और उसमें आइटरेट करेंगे, जिसका भी मतलब एक सर एसोसिएटिव एरे बना लेंगे आईडी का। हम्म। जैसे ही मतलब हमें उसका वहाँ पे एक डेटा मिलेगा और उसका टास्क कंप्लीट होगा तो उसमें एक इंक्रीमेंट कर देंगे उसकी वैल्यू। ओके, ठीक है। जैसे ऐसा करते हुए जिसका मैक्सिमम होगा वो कर देंगे। एसोसिएट एरे में क्या रखेंगे आप? सर आईडी रखेंगे और एक उसमें कितने टास्क कंप्लीट हुए हैं एक वेरिएबल बना लेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है, आइडिया ठीक है आपका। और कोई कुछ बोलना चाहता है? सही बोला अमन ने कि एक एसोसिएटिव एरे बना लेंगे और जैसे जैसे टास्क जिसका कंप्लीट हो उसकी जगह इंक्रीमेंट करते रहेंगे। ठीक है, अगर एरे बना ले सिर्फ तो काम नहीं चलेगा, अगर सिर्फ एरे बना ले तो। अमन, सर सिर्फ एरे में फिर थोड़ा वो प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? सर क्योंकि अगर हम सर आईडी मतलब सेम सर होना तो ऐसे
सर हो तो जाना चाहिए शायद से। हो तो जाना चाहिए। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। तो अगर हम डेटा को देखें तो डेटा को देखने पे हमें पता चल रहा है कि कुछ यूजर्स आईडी हैं, कुछ आईडीज हैं, कुछ टाइटल हैं, और टाइटल से लेकिन हमें ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे टाइटल क्या है उसका हम कुछ यूज़ थोड़ी कर रहे हैं ना। आपसे कोई ये पूछ रहा है कि अगर टाइटल इतना बड़ा है तो कुछ ऐसा काम करना है। कंप्लीटेड से हमें ज़्यादा मतलब है, राइट। तो हमारे जितने भी टास्क हैं उनको हमें एक मतलब यूजर्स कितने हैं, 10 यूजर है हमारे पास। अगर मान लीजिए बड़ा डेटा होता फिर हमको यूजर फाइंड आउट करने होते तो हम क्या कर सकते थे। अभी के लिए तो चलो आपने ये ले लिया, आपको दिख रहा है ये यूजर 1 2 3 ऐसे, और आपने 10 तक पता कर लिया। मान लीजिए बड़ी फाइल होती और जम्बल्ड होते, फिर आप क्या करते, सब यूजर्स की आईडीज को पिक कर लेते, उसमें से यूनिक फाइंड आउट कर लेते, ठीक है, और पता कर लेते कि कितने यूजर्स हैं टोटल। अभी हमको पता है कि यूजर्स इतने हैं, 10 यूजर है, तो एक एरे ऐसा बना लेते हैं। टास्क नाम से एक एरे बना लेता हूं मैं, इसमें 10 एलिमेंट हैं। ये मैंने क्यों बनाया, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि किस यूजर ने कितना काम किया। जैसे ही पहले यूजर ने कुछ काम किया होगा तो उसको 1 कर दूंगा, 2 किए होंगे तो उसको 2 कर दूंगा, 3 किए होंगे 3 कर दूंगा। लेकिन स्टार्टिंग में अभी हमारे पास कुछ हमको पता नहीं है तो हमने 0 कर दिया सबको। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ये बात सब। अब बात आई लूप चलाने की, तो लूप तो चलनी है। देखो i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, i शुड बी लेस देन कितना, कहां तक चलानी है लूप, क्या चीज है हमारे पास जिसमें हम लूप चला रहे हैं। नंबर ऑफ टास्क, तो वो डेटा है ना हमारे पास, उसकी लेंथ है वो, ठीक है। ये डेटा ही तो है देखो, और डेटा की लेंथ तक ही तो चलाना है हमको लूप, ठीक है। चलो ठीक है, ये भी हो गया काम। अब यहाँ पे क्या करूं ऐसा, जैसे मान लीजिए कुछ कंडीशन है कि अगर ऐसा हो जाता है तो कुछ और करो। दो चीजें हैं, एक कंडीशन है कि ऐसा हो जाता है, और दूसरी उसकी बॉडी में हमें कुछ लिखना है, इफ की बॉडी में कुछ लिखना है, फिर ऐसा कर लो। तो जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, क्या कंडीशन चेक करना चाह रहे हैं हम, कंप्लीटेड है कि नहीं, राइट। ऐसे कुछ मतलब ऐसा समझ लो कि ऐसा डेटा में डेटा का कोई इंडेक्स मे बी ith इंडेक्स, ith इंडेक्स ही तो चेक करना चाह रहे हैं, और उसमें साथ में ये चेक करना चाह रहे हैं कि कंप्लीटेड है कि नहीं है। तो अगर कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड अगर होगा तो ट्रू होगा मतलब, और अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे फिर इसके बाद, इंक्रीमेंट करेंगे किसमें, टास्क में। टास्क के कौन से वाले पार्ट में, आईडी वाले, आईडी दे यहाँ पे, आई दे दूं क्या, आई नहीं दे सकते ना, आई नहीं दे सकते, क्या देना पड़ेगा, यूजर आईडी कहां से लाऊं, लूप नंबर तो 0 से स्टार्ट होकर 200 तक जा रहा है ना। ठीक है, पर वो मैं इस अभी जहां पे मेरा माउस का जो कर्सर है, जहां पे कर्सर है अभी वहां पे डालना चाहता हूँ ना मैं वो चीज, यहाँ पे 0 से लेके 9 तक ही तो देना चाहता हूँ मैं अभी। आईडी 1 से लेके 10 तक है, लेकिन 0 से 9 मानो उसको भी फिलहाल इंडेक्सिंग के हिसाब से। तो 0 से 9 को कैसे मैप करूंगा मैं यहाँ पे,
आई से कैसे मैप करूंगा? आई लिखूंगा तो आई तो 200 तक चला जाएगा ना। क्या करूं ऐसा यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर यूजर का पता कैसे लगाऊंगा? डेटा में यूजर का पता चल रहा है ना। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट पिक कर रहा हूँ छोटा सा, देखो ऑब्जेक्ट, इसमें से कैसे पता करूं कि कौन सा यूजर है? पता चलेगा ना। अगर मैं डेटा आई उठा रहा हूं तो ये मिलेगा मुझे कि नहीं मिलेगा? अब इसमें से थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि यहाँ पे कैसे क्या करूं मैं कि ये 0 से 9 में मैप हो जाए। यूजर आईडी दे सकते हैं ना? देंगे यूजर आईडी, कैसे देंगे पर ये बताओ, क्या लिखूं यहाँ पे? यहीं पे कुछ आप एक लाइन ऐसी लिख सकते हो कि उससे हो जाएगा। डेटा आई राइट यूजर आईडी चीज तो पता चलेगा किस यूजर की बात हो रही है। बट हमने 0 से 9 में मैप किया है तो क्या करेंगे? आईडी तो 1 से 10 में आएंगी ना, और एरे हमारा 0 से 9 है तो क्या करूं यहाँ पे? आप -1 कर देता हूँ, प्लस -1। यूजर आईडी तो 1 आ गई ना, वो एक्चुअली 0 पे मैप करनी है तो -1 कर दिया। तो अब इस पे क्या आगे क्या करूं? प्लस प्लस, वेरी गुड। सॉर्टिंग पढ़ ली आपने? काउंटिंग सॉर्ट पढ़ी है? काउंटिंग सॉर्ट, अच्छा ठीक है। काउंटिंग सॉर्ट में कुछ ऐसी टेक्निक, ऐसी इस तरीके की चीजें यूज होती हैं जिसमें हम उसके एरे के इंडेक्स पे जाके वहां दूसरा एरे उठाते हैं, फिर उसमें प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसा कुछ करते हैं। जब पढ़ोगे आपको तो आपको आइडिया लगेगा, बट वैसे इससे काउंटिंग सॉर्ट का कोई लेना देना नहीं है। हो गया फिर काम, कोड तो खत्म हो गया। फिर अब आगे अब कुछ है बचा हुआ? है बचा हुआ? नहीं बचा हुआ? चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार। अब मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे टास्क चेक कर लेता हूँ। देखो आ गया, ये एरे बना आपका फाइनली। एरे वहां पे भी चेक कर सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो कौन कौन से यूजर हैं, कौन सी आईडी वाले यूजर है जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है? 5 और 10 ने, ठीक है। और सबसे कम किसने किया है? 4 ने और 6 ने। तो अब इससे निकाल लोगे आसानी से, अब तो कुछ रह भी नहीं गया। ठीक है, एक स्टार्टिंग में मैक्स लेके चलो और कंपेयर कराते रहो, जो आ रहा है मैक्सिमम उसको प्रिंट करा दो कि दिस यूजर आईडी हैज कंप्लीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क। जो भी इंडेक्स होगा उसमें आप +1 करके लिख देंगे फिर, क्योंकि अगर 0 वाला मिलेगा तो आपको 1 लिखना पड़ेगा ना। आपने ऊपर -1 किया था, उसको +1 भी तो करेंगे आगे। तो आगे इतनी बात समझ में? तो ऐसे ऐसे काम करने हैं आपको भविष्य में, ठीक है। ये तो अभी एक छोटा सा ट्रेलर है। अगर जेसन डेटा पे काम करेंगे तो ये तो अभी कुछ भी नहीं था। वो था एक्चुअली जो आपको दिखाया था इससे पहले, जैसे ट्विटर डेटा। रियल लाइफ एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो ऐसा करना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं कि छोटा सा ये 4 लाइन दे दी और हो गया, कुछ बड़ा ही होगा। तो जो बड़ा करना है वो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, ठीक है, ताकि आप उस पर काम कर पाएँ, कुछ दिखा पाएँ, कुछ एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। नहीं नहीं, वीडियो नहीं दूंगा, सिर्फ टास्क दूंगा करने के लिए। क्यों नहीं बनती वीडियो? बोलना नहीं आता? यहाँ तो तुम बहुत बोलते हो, बोलना क्यों नहीं आता वीडियो में? कैपेबिलिटी तो वो तो आनी चाहिए, वो तो आनी चाहिए, समझाने की कैपेबिलिटी। ऐसे तो सीखते हैं। सभी अभिमन्यु तो होते नहीं। हाँ? दुनिया में आके सीखना पड़ता है सब कुछ। तो ये वाला टास्क जो अभी मैंने करवाया आपसे, इस असाइनमेंट को कंप्लीट करो। जिसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। मैं आपको ये दोनों के दोनों पुश कर देता हूँ।
एक इस फाइल का नाम मैं बदल देता हूँ। ठीक है, दो फाइल है हमारे पास। ये दोनों फाइल मैंने पुश कर दिए, आप ही चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए।